ناول پاکیشیا کلاب مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 8 اور باس برمن کو ان سے چھین کر لے جانے لگے کہ پہلی پارٹی نے فائر کھول دیا اور اس فائر کی ذات میں باس برمن آ گئے۔ ان کا جسم چھلنی ہو گیا۔ باس برمن کے ہلاک ہوتے ہی دونوں پارٹیاں فرار ہو گئی۔ پہلی پارٹی اپنے زخمی اور مردہ افراد کو بھی لے گئی۔ اس کے بعد پولیس پہنچ گئی۔ اب میں فارغ ہوا ہوں تو میں نے آپ کو فون کیا ہے، جیکی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ ویری سیڈ۔ پولیس کو کیا بتایا گیا ہے؟ ڈاکٹر آرنلڈ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے پوچھا۔ ہم نے تو یہی کہا ہے کہ نہ جانے کون لوگ تھے اور انہوں نے کیوں حملہ کیا ہے۔ ویسے پچھلی رات کی وجہ سے وہاں کافی زیادہ ممبر تو موجود نہ تھے، جو چند تھے وہ البتہ مارے گئے۔ جیکی نے کہا، ٹھیک ہے تم محتاط رہنا، اب تم نے برمن کی جگہ سنبھالنی ہے۔ تمہارے علاوہ اور کسی کو تو میرے متعلق علم نہیں ہے؟ ڈاکٹر آرنلڈ نے پوچھا۔ نو سر باس، صرف مجھے یہ علم تھا، جیکی نے جواب دیا۔ اوکے محتاط رہنا، میں جلد ہی تمہیں مزید ہدایات دوں گا، ڈاکٹر آرنلڈ نے کہا اور جلدی سے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا۔ لائن کٹتے ہی اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس ڈی1۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ ڈی اے اسپیکنگ، ڈاکٹر آرنلڈ نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس باس۔ اس بار دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ مؤدبانہ تھا۔ الپائن کلب کا مالک برمن مارا جا چکا ہے، اس کا مینیجر جیکی البتہ زندہ ہے، اسے 1 گھنٹے کے اندر ختم کر دو۔ اس کے ساتھ ہی الپائن کلب کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے تاکہ وہاں اگر ہماری نشاندہی کے سلسلے میں کوئی چیز موجود بھی ہو تو وہ ختم ہو جائے۔ فوری ایکشن لو، ڈاکٹر آرنلڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور ڈاکٹر آرنلڈ نے ریسیور کریڈل پر پٹکا دیا اور ایک بار پھر تیزی سے اس ملحقہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر ایک مخصوص قسم کا لاک لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر آرنلڈ نے دروازے کی موٹ کو مخصوص انداز میں کئی بار دائیں بائیں گھمایا تو کٹک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا اور ڈاکٹر آرنلڈ اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، لیکن اس کمرے کے سامنے والی دیوار میں ایک دیوہیکل مشین نصب تھی جس پر بے شمار بلب بھی تھے اور ایک بڑی سی سکرین بھی تھی۔ ڈاکٹر آرنلڈ نے دروازہ بند کیا، پھر آگے بڑھ کر اس نے مشین کے ایک بٹن پریس کیا تو مشین میں زندگی کی لہریں دوڑنے لگی۔ سٹول کھینچ کر وہ مشین کے سامنے بیٹھ گیا۔ اسی لمحے کمرہ یکلخت اندھیرے میں ڈوب گیا، البتہ چھت پر موجود بلب میں سے تیز قرمزی رنگ کی شاخیں نکل کر ڈاکٹر آرنلڈ کے جسم پر پڑنے لگی۔ سکرین پر آڑی ترچھی لہریں دوڑ رہی تھی۔ مشین میں سے ہلکی سیٹی کی آواز نکلتی جا رہی تھی جو لمحہ بلمح تیز ہو رہی تھی اور پھر یکلخت سیٹی کی آواز ختم ہو گئی اور اس کی جگہ شائیں شائیں جیسی آوازیں نکلنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی سکرین پر کالے رنگ کی ایک بلی کی تصویر ابھر آئی جس کی آنکھیں بالکل سفید تھی اور تیزی سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ یس بلیک کیٹ، مشین میں سے تیز اور غراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر آرنلڈ فرام پاکیشیا، ڈاکٹر آرنلڈ نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اسپیشل کال کا مقصد؟ وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ باس، پہلی اطلاع تو یہ دینی تھی کہ T2 طیارے کا سراغ میں لگا لیا۔ یہ طیارہ کارال ایئر بیس پر موجود ہے اور پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ طیارہ ہم نے اغوا کرنا ہے یا اس کی ٹیکنالوجی کی دستاویزات حاصل کرنی ہے؟ ڈاکٹر آرنلڈ نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تفصیلی رپورٹ دو، چیف باس نے اسی طرح غراتے ہوئے کہا اور جواب میں ڈاکٹر آرنلڈ نے فرینک سے ملنے والی تمام رپورٹ دہرا دی۔ دوسری بات کیا تھی؟ باس نے پوچھا۔ باس، دوسری بات یہ ہے کہ اس بار پاکیشیا کلب والا معاملہ بے حد سنگین ہو چکا ہے۔ اخبارات میں اعلانات کرا دیے گئے ہیں یہاں کے ایک مشہور ہوٹل 6 اسٹار میں منعقد ہو رہا ہے، لیکن پھر اچانک یہاں کی سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر رحمان کا لڑکا علی عمران میری رہائش گاہ پر آیا۔ اس نے مجھے باتوں باتوں میں پاکیشیا کلب اور اس کے کارڈ کا ذکر کیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے شک ہو کہ پاکیشیا کلب کے کارڈ میں جاری کرتا ہوں، لیکن ظاہر ہے وہ مجھ سے کیا معلوم کر سکتا تھا۔ البتہ چونکہ اس نے مجھ پر واضح طور پر شک کیا تھا، چنانچہ میں نے ایسی تھرسی والا شربت اسے پلا کر بھجوا دیا جس سے راستے میں اس کی کار کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ شدید زخمی ہو کر اسپتال پہنچ گیا۔ ایکسیڈنٹ میں تو وہ صرف زخمی ہوا ہے، لیکن اس تھرسی سے وہ اب تک لازماً ہلاک ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد مقامی ایجنٹ برمن نے مجھے کال کیا کہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو وزارت ثقافت کا افسر کہتا ہے اس کے دفتر بھی آیا اور اس نے ایڈورٹائزنگ کمپنی کا حوالہ دیا جس میں کلب کا کارڈ انتہائی خفیہ طور پر چھپ رہا ہے۔ میں نے اس آدمی کو فوری گرفتار کرنے اور اس سے راز اگلوانے کا حکم دیا، چنانچہ اس آدمی کو پکڑ کر ایک خفیہ اڈے میں پہنچا دیا گیا، لیکن اس دوران ایک پارٹی نے برمن کے کلب پر خوفناک حملہ کیا اور برمن کو اغوا کرنے کی
कोशिश की, लेकिन ऐन अगवा के वक्त एक और पार्टी मैदान में कूद पड़ी और बर्मन हलाक हो गया। बर्मन के असिस्टेंट जैकी ने मुझे अभी कॉल करने से पहले इतला दी तो मैंने D1 को हुक्म दे दिया है कि इस जैकी का भी फौरी तौर पर खात्मा कर दिया जाए और पूरे अल्पाइन क्लब की ईंट से ईंट बजा दी जाए। डॉक्टर आर्नल्ड ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि इमरान मार चुका है? ब्लैक कैट की आवाज़ पुरस्कार ठहराव था। यस बॉस, एस थर्सी को मकामी डॉक्टर तो किसी तौर पर भी चेक नहीं कर सकते और इसका असर लाजमन 12 घंटों बाद हार्ट फेलर की सूरत में निकलता है और अब इस बात को 20 घंटे गुजर चुके हैं। डॉक्टर आर्नल्ड ने जवाब दिया, सुनो, ये इमरान पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का इंतहाई खौफनाक आदमी है और तुम्हारा पाकिस्तान क्लब वाला चक्कर अब तक इसके लिए कामयाब जा रहा था कि वो इस तरह मुतवज्जे ना हुआ था, लेकिन उसका तुम तक पहुंचने का मतलब है कि अब सब कुछ मालूम हो चुका है। अगर तो वो मर चुका है तब तो समझो एक अजाब तुम्हारी गर्दन से उतर गया, और अगर वो नहीं मरा तो फिर वो कयामत बनकर तुम पर टूट पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अब लाजमन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस भी हरकत में आ जाएगी और बर्मन पर हमला बताता है कि कुछ और पार्टियां भी इस सिलसिले में मसरूफ़ हैं, इसलिए फौरी तौर पर पाकिस्तान क्लब वाला सिलसिला ख़त्म कर दो। और सुनो, T2 तैयारी के मुतालिक तुम में से किसी ने कोई इकदाम नहीं करना। इसके लिए हम अलहदा टीम भेजेंगे। तुम अपनी तमाम सेक्शनों को आगाह कर दो कि इस मामले में बिल्कुल कोई इकदाम ना करें और तुम खुद फौरी तौर पर रोपोश हो जाओ जब तक तुम्हें मुकम्मल तौर पर यकीन ना हो जाए कि तुम्हारी ज़ात हर किस्म के शक व शुबा से बालातर हो गई है। दूसरी तरफ से गुरखत लहजे में हिदायत दी गई। यस बॉस, डॉक्टर आर्नल्ड ने इस बार कदरे मायूसाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, और फिर दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल के अल्फाज सुनकर उसने एक तवील सांस लिया। स्क्रीन पर से स्याह बिल्ली की आंखें घुमाती हुई तस्वीर गायब हो गई थी। उसने हाथ बढ़ाकर मशीन बंद की तो कमरा दोबारा रोशन हो गया, लेकिन डॉक्टर अर्नल्ड का चेहरा लटका हुआ था क्योंकि चीफ बॉस ने एक लिहाज से उसे और इसकी पूरी टीम को नाकारा करार देकर मुअत्तल कर दिया था। दरवाज़ा खोलकर वो कमरे से बाहर आया और एक आरामदेह कुर्सी पर नीम दराज होकर उसने आंखें बंद कर ली। न जाने कितनी देर से उसे ऐसे बैठे हुए गुजर गई कि अपनी अकब में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर वो बुरी तरह चौंक पड़ा और फिर दरवाजे में दाखिल होने वाले नौजवान को देखते ही उसके चेहरे पर शदीद हैरत के आसार उभर आए। एंथोनी तुम? डॉक्टर अर्नल्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि एंथोनी उसके मातहत नाम ग्रुप्स का इंचार्ज था और इसका नंबर 2 था, लेकिन आज से पहले एंथोनी कभी बगैर इतला दिए उसके हेडक्वार्टर में ना आया था। यस डॉक्टर आर्नल्ड, एक आम पैगाम पहुंचाना था तुम्हें, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा, एंथोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसके लहजे में मखसूस मुअद्दबानापन हरगिज़ मौजूद न था जो एक मातहत के लहजे में होना चाहिए था। क्या तुम आज किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? डॉक्टर आर्नल्ड ने उछल कर खड़े होते हुए कहा, जिस लहजे में मुझे बात करनी चाहिए। ये लो पैगाम, खुद ही पढ़ लो। एंथोनी ने उसी तरह सख्त और खुरदरे लहजे में कहा और जेब से एक कागज़ निकाल कर डॉक्टर आर्नल्ड की तरफ बढ़ा दिया। ये कागज़ सुर्ख रंग का था। कागज़ को देखते ही डॉक्टर आर्नल्ड का चेहरा यकलक स्याह पड़ गया, क्योंकि वो इस मखसूस कागज़ को अच्छी तरह समझता था। उसे डेथ वार्स पर किया जाता था। उसने कांपते हुए लहजे में कागज़ खोला तो उसके नज़रें कागज़ के दरमियान लिखे हुए अल्फाज पर जम गई। दूसरे लम्हे कागज़ उसके हाथों से फिसल गया। कागज़ पर उसका नाम और ओहदा लिखा हुआ था और नीचे लफ्ज़ डेथ लिखा हुआ था। मगर क्यों? डॉक्टर आर्नल्ड ने कांपते हुए लहजे में कहा, इसका जवाब तो हेडक्वार्टर ही दे सकता है। तुम्हारी जगह मुझे फौरी तौर पर पाकिस्तान का इंचार्ज बना दिया गया है और इसकी इतला तमाम सेंटर्स को दे दी गई है। मैंने डेथ वारंट मिलने के बाद हेडक्वार्टर में मौजूद अपने एक दोस्त से बात की थी, तो मुझे इतना पता चला है कि तुम वहाँ की सीक्रेट सर्विस से मुतल्लिक किसी आदमी की नज़रों में आ गए हो, इसलिए तुम्हारी फौरी मौत ज़रूरी हो गई है। दूसरी बात यह कि एक्रीमिया का खौफनाक तरीन सिंगल एजेंट डाई जान भी यहाँ आया हुआ है और एक्रीमिया की एक और खौफनाक मुजरम तंजीम ब्लू बर्ड के मुतालिक भी इतलात मिली है कि वो भी यहाँ मौजूद है। इसलिए हेडक्वार्टर ने नतीजा निकाला है कि तुम ना सिर्फ मकामी सीक्रेट सर्विस बल्कि एक्रीमिया के एजेंटों के सामने भी बेनकाब हो चुके हो। अब तुम्हें ज़िंदा रहने की का मतलब पाकिस्तान में ब्लैक कैट के तमाम सेंटर्स की मुकम्मल तबाही के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए मुझे फौरी तौर पर हुक्म दिया गया है कि ना सिर्फ डेथ वारंट की तकमील करूँ बल्कि इस हेडक्वार्टर में मौजूद हर शख्स का खात्मा करके इस पूरे हेडक्वार्टर को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दूँ। चुनाचा अब मैं पहले तुम्हें कत्ल करूँगा, फिर इस हेडक्वार्टर में इंतहाई ताकतवर वायरलेस स्पैम फिट करके इस पूरे हेडक्वार्टर को उड़ा दूंगा। एंथोनी ने सार्द लहजे में कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो डॉक्टर आर्नल्ड से उसकी मौत के बारे में गुफ्तगू करने की बजाय किसी इंतहाई दिलचस्प मौजू पर गुफ्तगू कर रहा हो।
तुम्हारी ये जुर्रत? डॉक्टर आनंद यकलक जो चलते हुए कहा और उसका हाथ बिजली की सी तेज से जेब से बाहर आया। उसके हाथ में भारी रिवॉल्वर मौजूद था, लेकिन अंथोनी बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में खड़ा रहा। डॉक्टर आर्नल्ड ने रिवॉल्वर निकालते ही उसका ट्रैगर दबाया, लेकिन रिवॉल्वर से गोली की बजाय ट्रिच की आवाज़ निकली। डॉक्टर आर्नल्ड पागलों के इस अंदाज में मुसलसल ट्रैगर दबाता रहा, लेकिन सिवाय ट्रिच ट्रिच की आवाज़ों की और कोई नतीजा बरामद न हुआ और उसके साथ ही कमरा अंथोनी की तंज या कह के से गूंज उठा। हेडक्वार्टर ने रिवॉल्वर को पहले ही बेकार कर दिया था। तुम खुद तो कर्मजीशुआओं में घेरे बैठे हेडक्वार्टर से बात करते रहे और इन्हीं कर्मजीशुआओं में एलेस्टान रेस भी शामिल कर दी गई, जिसके बाद तुम्हारे जिस्म के साथ मौजूद तमाम बारूदी असला बेकार हो गया। तो मुझे इतला दे दी गई, इसलिए मैं मुतमिन था, अंथोनी ने कहका लगाते हुए कहा और इसके साथ ही उसका हाथ जेब से बाहर आया। दूसरे लम्हे धमाके के साथ ही डॉक्टर आर्नल्ड के हलक से चीख निकली और वो चलकर पुश्त के बाल नीचे फर्श पर गिरा। उसी लम्हे दूसरा धमाका हुआ और इस बार गोली ठीक नीचे गिरे हुए डॉक्टर आर्नल्ड की खोपड़ी में घुसी और इसके साथ ही डॉक्टर आर्नल्ड के हवास पर मौत की तारीकी छा गई। टेलीफोन की घंटी बजते ही कुर्सी पर बैठे हुए सिद्दीकी ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। वो थोड़ी देर पहले नींद से बेदार हुआ था और बाथरूम से वापस आकर कुर्सी पर बैठा था। यस सिद्दीकी स्पीकिंग, सिद्दीकी ने कहा। सिद्दीकी भाई, मैं बर्जिस बोल रही हूँ, बेगम बिलग्रामी। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी और सिद्दीकी ये आवाज़ सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। बर्जिस उसकी खालाजाद बहन थी। बर्जिस, तुमने कैसे फ़ोन किया? खैरियत है? सिद्दीकी बर्जिस की इतनी सुबह इस गैर मुतवक्के फ़ोन पर बुरी तरह चौंक पड़ा। मैं बेहद परेशान हूँ सिद्दीकी, इंतहाई परेशान। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि अचानक मुझे तुम्हारा ख्याल आया। तुमने एक बार बताया था कि तुम मिलिट्री इंटेलिजेंस में हो, इसलिए मैंने सोचा कि शायद तुम मेरी मदद कर सको। बर्जिस ने परेशान से लहजे में कहा। ओह, वो तो तुम बहुत पुरानी बात कर रही हो। मिलिट्री इंटेलिजेंस को छोड़े तो मुझे काफ़ी अरसा गुजर चुका है। बहरहाल ये बताओ परेशानी क्या है? सिद्दीकी ने जवाब दिया। तुम मेरे घर आ जाओ फ़ौरन, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, बर्जिस ने कहा। लेकिन मुझे तो मालूम नहीं कि तुम आजकल कहाँ रह रही हो, सिद्दीकी ने कहा और वाकई उसे मालूम न था, क्योंकि सीक्रेट सर्विस में शामिल होने के बाद रिश्तेदारों से मिलने का कभी 3-4 साल बाद ही मौका मिलता था। एक लिहाज से सीक्रेट सर्विस में आने के बाद वो सब दुनिया के हर ताल्लुक से लाताल्लुक हो चुके थे। डिफेंस कॉलोनी, कोठी नंबर 25, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, बर्जिस ने कहा। ओके, मैं आ रहा हूँ, सिद्दीकी ने कहा। रिसीवर रख कर वो कुर्सी से उठा और तेज़ी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। तो उसने मालूम था कि बर्जिस का शौहर बिलग्रामी वजारत दिफा में किसी ऊंचे ओहदे पर फायज है, लेकिन तफसीलात का उसे इल्म न था। शायद 5 सालों पहले फंक्शन में बर्जिस और उसके शौहर बिलग्रामी से मुलाकात हो गई थी और बर्जिस जो इसके साथ इकट्ठी यूनिवर्सिटी में पढ़ती रही थी, उसने फंक्शन में उससे बात का बड़ा गिला किया था कि वो मिलता ही नहीं। लेकिन सिद्दीकी ज़ाहिर से क्या जवाब देता, टाल गया। अलबत्ता बर्जिस ने ज़बरदस्ती उसका फ़ोन नंबर उससे ले लिया था। बहरहाल लिबास तब्दील करके वो फ्लैट से निकला और फिर गिराज से कार निकाल कर वो डिफेंस कॉलोनी की तरफ बढ़ गया। उस वक्त सुबह का उजाला हल्का हल्का फैल रहा था, इसलिए सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। सिद्दीकी ने कार खासी तेज़ रफ्तारी से चलाई। थोड़ी देर बाद डिफेंस कॉलोनी पहुंच गया। कोठी नंबर 25 तलाश करने में उसे कुछ ज़्यादा वक्त ना लगा। कोठी खासी शानदार और वसी थी और कोठी से ही जाहिर होता था कि बर्जिस का खावंद बिलग्रामी के ओहदे में खासी तरक्की हो चुकी है। कॉल बेल के जवाब में मुलाजम ने फाटक खोल दिया और सिद्दीकी कार अंदर ले गया। बरामदे में ही बर्जिस परेशानी के आलम में टहल रही थी। खैरियत है बर्जिस? आखिर इतनी क्या परेशानी है? बिलग्रामी कहाँ है? सिद्दीकी ने कार से उतरते हुए कहा। उन्हीं के मुतालिक तो सारी परेशानी है, मेरे साथ आओ, बर्जिस ने होठ काटते हुए कहा और फिर सिद्दीकी को लेकर ड्राइंग रूम में गई, जहाँ दीवार पर बिलग्रामी और बर्जिस का शादी के मौके पर लिया गया फ़ोटो नास्ब था। गो बर्जिस की शादी को काफ़ी अरसा गुजर चुका था, लेकिन बर्जिस अभी तक उसी तरह थी जैसे वो शादी के उस फोटो में नज़र आ रही थी। सिद्दीकी भाई, बिलग्रामी गायब है, उसका कहीं पता नहीं चल रहा, बर्जिस ने ड्राइंग रूम में बैठते ही कहा। गायब है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं, सिद्दीकी ने चौंक कर पूछा। कल बिलग्रामी की तबीयत कदरे नासाज थी, इसलिए वो दफ्तर ना गया। सपैर के वक्त उसे दफ्तर से कॉल आई और बिलग्रामी कॉल सुनने की बात कही जाने के लिए तैयार होने लगा। मैं इस वक्त बावर्ची खाने में थी। इसी लम्हे एक बार फिर कॉल आई तो बिलग्रामी ने कॉल रिसीव की। बावर्ची खाने की खिड़की खुली हुई थी और बिलग्रामी साथ वाले कमरे में बात कर रहा था, इसलिए गुफ्तगू मेरे कानों में भी पड़ी।
कोई आदमी अनथुनी बात कर रहा था। बिलग्रामी ने पहले उसे खासा गुस्सा दिखाया कि उसने क्यों कॉल की, लेकिन फिर किसी पकिशिया क्लब का हवाला अनथुनी ने दिया तो बिलग्रामी अगला खौफजदा सा हो गया। उसके लहजे में बेचारगी और कदरे बेबसी सी नुमाया होने लगी। उसके बाद कॉल बंद हो गई तो मैंने बिलग्रामी से पूछा कि किसकी कॉल थी। बिलग्रामी मुझे टाल गया कि एक पुराने दोस्त की तरफ से कॉल थी, और फिर वो ये कहकर चला गया कि वो एक ज़रूरी काम से जा रहा है, रात देर से वापस आने आएगा। लेकिन सारी रात गुजर गई और वो वापस नहीं आया तो मुझे बेहद तशवीश हुई। मैंने सुबह उसके तमाम वाकिफ़कारों और दोस्तों के घर फ़ोन करके मालूम किया, लेकिन बिलग्रामी का कोई पता ना चला। मैंने दफ्तर से मालूम किया तो उन्होंने भी लाइलमी का इजहार किया। इस दौरान एक कॉल आई। बिलग्रामी बोल रहा था लेकिन उसके लहजे में शदीद कराह मौजूद थी, जैसे वो शदीद ज़ख्मी हो। उसने मुझे कहा कि वो एक सरकारी खुफिया काम में मसरूफ़ है, इसलिए मैं फ़िक्र ना करूँ और अगर कोई पूछे तो मैं सिर्फ इतना बताऊँ कि वो किसी अजीज़ के यहाँ गया हुआ है। फिर इससे पहले कि मैं मज़ीद कुछ पूछती फ़ोन बंद हो गया। मैं उस कॉल के बाद बेहद परेशान हो गई हूँ। बिलग्रामी जिस ओहदे पर फायज है वो इंतहाई आम और खुफिया ओहदा है, इसलिए मैं पुलिस या मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी कुछ नहीं बता सकती। जो हो सकता है बिलग्रामी किसी मुसीबत में फंस गया हो। फिर अचानक मुझे तुम्हारा ख्याल आया तो मैंने अपनी पुरानी डायरी तलाश की, उसमें तुम्हारा फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। तब मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। तुम मेरे भाइयों तो मेरी मदद करो, सरकारी तौर पर नहीं बल्कि गैर सरकारी तौर पर। बर्जीस ने परेशान लहजे में कहा। क्या बिलग्रामी अपनी ज़ाती कार में गया या सरकारी कार में? सिद्दीकी ने कुछ सोचते हुए पूछा। ज़ाती कार में, बर्जीस ने जवाब दिया। उसकी कार का नंबर और मॉडल? सिद्दीकी ने कहा और बर्जीस ने उस कार का नंबर और मॉडल बता दिया। ठीक है, आप बताओ कि बिलग्रामी आजकल किस ओहदे पर काम कर रहा है? सिद्दीकी ने कहा वो वजारत दिफा के ऑपरेशन सेक्शन का इंचार्ज है। वजारत दिफा का ये सेक्शन इंतहाई हसास सेक्शन समझा जाता है, इसलिए तो मुझे बेहद परेशानी हो रही है। बर्जीस ने होठ काटते हुए कहा। पाकिशिया क्लब का क्या किस्सा है, कुछ उसकी तफसील बताओ? सिद्दीकी ने कहा पाकिशिया क्लब हर साल किसी आला होटल में इस्तकबालिया देता है जिसमें इंतहाई मुअज़्ज़ज़ अफराद को शरीक होने की दावत दी जाती है। गुज़िश्ता साल बिलग्रामी को भी कार्ड आया और बिलग्रामी इस कार्ड के मिलने पर बेहद खुश हुआ। उसने शिरकत की, लेकिन मैंने महसूस किया कि इस इस्तकबालिया में शिरकत के कुछ अरसे बाद बिलग्रामी का रवैया बदल गया। वो बेहद चिड़चिड़ा सा हो गया था। यूँ लगता था जैसे उसके ज़हन पर कोई दबाव हो। मैंने कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो मुतमईन करके टाल देता। बर्जीस ने जवाब दिया। तो ठीक है, तुम फिक्र ना करो, मैं बिलग्रामी को जल्द ही ढूंढ लूँगा। लेकिन क्या बिलग्रामी डायरी वगैरह लिखता था? सिद्दीकी ने बर्जीस को तसल्ली देते हुए पूछा। नहीं, डायरी लिखने की उसे कतई आदत ना है। बर्जीस ने सर हिलाते हुए कहा। तुमने किस संथुनी का जिक्र किया है? क्या तुमने पहले ये नाम सुना हुआ था? सिद्दीकी ने पूछा। हाँ, एक बार पहले इस नाम के आदमी की कॉल आई थी। बिलग्रामी उस वक्त घर में मौजूद ना था और उसने बताया कि वो बिलग्रामी का दोस्त है, और जैसे ही बिलग्रामी आए उसे पैगाम दे दूं कि वो उसे मिलने गार्डन क्लब में आ जाए। बर्जीस ने कहा। फिर तुमने पैगाम दे दिया था? सिद्दीकी ने पूछा और बर्जीस ने सारे ला दिया। ओके बर्जीस, तुम कतई बेफिक्र हो, मैं जल्द ही तुम्हें अच्छी खबर सुनाऊंगा, सिद्दीकी ने उठते हुए कहा। ओ सिद्दीकी, तुम मेरे भाई हो, प्लीज़ कुछ करो, मेरे दिल में बड़े वहम आ रहे हैं। बर्जीस ने कहा। तुम फिक्र ना करो बर्जीस, घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तसल्ली रखो, सिद्दीकी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। शुक्रिया, वाकई तुम्हारे आने से बड़ा इत्मीनान सा महसूस हो रहा है। तुमने नाश्ता नहीं किया होगा। ठहरो, मैं मुलाजिम से कह दूँ तुम्हारा नाश्ता बनाए, बर्जीस ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, नाश्ता मैंने कर लिया है। ओके, मुझे इजाज़त, सिद्दीकी ने कहा और फिर कार में बैठकर वो कोठी से निकल आया। उसने सबसे पहले गार्डन क्लब जाने का फैसला किया था। एक बार उसे ख्याल आया कि वो अपने साथियों से इस मसले में मदद के लिए गए, लेकिन फिर उसने सोचा कि पहले अपने तौर पर तो कोशिश करे। पाकिस्तान क्लब का इश्तिहार इस बार उसने भी अखबार में पढ़ा था, और फिर जूलियस मेसा मेंबर्स ने उस इस्तकबालिया में शिरकत करने का फैसला भी किया था, और जूलिया ने इमरान को इस कार्ड हासिल करने के लिए फ़ोन भी किया था। लेकिन फिर एक्स2 ने उन्हें इस इस्तकबालिया से अलहदा रहने का हुक्म दे दिया। इस तरह उनकी सारी प्लानिंग ख़त्म हो गई। थोड़ी देर बाद उसकी कार गार्डन क्लब के गेट पर पहुंच गई। इसने कार एक साइड पर रोकी और फिर कार से उतरकर वो गार्डन क्लब में दाखिल हो गया, लेकिन वहाँ हर तरफ मुकम्मल सकूत तारी था। एक चौकीदार के सिवा वहाँ और कोई आदमी मौजूद न था। साहब, इस वक्त तो क्लब में कोई नहीं आता। चौकीदार ने हैरत भरे लहजे में सिद्दीकी को देखते हुए कहा। मुझे मालूम है, लेकिन मुझे पता चला कि मेरे एक दोस्त अंथुनी यहाँ ठहरा हुआ है, मैं उससे मिलने आया हूँ, सिद्दीकी ने जवाब दिया। अंथुनी? कौन अंथुनी?
यहाँ तो कोई अंथुनी नहीं रहता, बल्कि कोई भी नहीं रहता। चौकीदार के लहजे में और ज्यादा हैरत उभर आई। यार तुम कैसे चौकीदार हो, अंथुनी को नहीं जानते? सिद्दीकी ने कहा। जनाब, इस नाम के 3 अफराद तो क्लब के मुस्तकिल मेंबर हैं और अक्सर आते जाते रहते हैं। उनमें से एक का नाम डेविड अंथुनी है, दूसरे का चार्ल्स अंथुनी और तीसरे का कार्पर अंथुनी। आप किसका पूछ रहे हैं? चौकीदार ने जवाब दिया। तीनों के मुतालिक बता दो। सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए और जेब से एक बड़ा नोट निकाल कर उसे चौकीदार के हाथ थमा दिया। चौकीदार की आंखों में चमक उभर आई। ओह साहब, इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं तो आपका खादम हूँ जनाब। चौकीदार का लहजा यकलख बदल गया था, लेकिन उसने नोट जल्दी से जेब में डाल लिया। इन तीनों के मुतालिक जो तफसील तुम्हें मालूम हो बताओ, सिद्दीकी ने कहा। जनाब, इनमें से 2 तो मकामी है जबकि एक गैर मुल्की है। गुज़िश्ता 4-5 साल से नज़र आने लगा है, लेकिन एक बात है साहब, उसकी दोस्ती बहुत बड़े बड़े अफसरों से है। उसका नाम डेविड अंथोनी है। मुझे उसका पता तो मालूम नहीं, अलबत्ता दफ्तर के रजिस्टर में शायद लिखा हो। और चार्ल्स अंथोनी साहब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। सफ़ेद रंग की लंबी सी कार है उनकी बेगम बहुत खूबसूरत है। जब वो क्लब में आती है तो चौकीदार की ज़ुबान तेज़ी से चलने लगी। बस बस, बेगम को छोड़ो, मुझे किसी की बेगम से कोई दिलचस्पी नहीं। सिद्दीकी ने बुरा समूह बनाते उसे दरमियान में टोक दिया। अच्छा साहब, तीसरे कार पर अंथोनी साहब एक टेक्सटाइल मिल के चीफ मैनेजर है साहब। सूखे पतले से आदमी है, बड़े सड़ियल से। किसी को कुछ देना तो एक तरफ, इतने कंजूस है कि सलाम का जवाब भी नहीं देते, चौकीदार ने कहा। और इस बार सिद्दीकी चौकीदार की बात सुनकर बेख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ा। चौकीदार ने वाकई कंजूस की खूबसूरत मिसाल दी थी। इस गैर मुल्की का पता चाहिए मुझे दोस्त। सिद्दीकी ने सारे हिलाते हुए कहा। फौरी तौर पर उसे अभी ख्याल आया था कि ये गैर मुल्की ही बिलग्रामी के चक्कर में मुलविस हो सकता है, क्योंकि बहरहाल बिलग्रामी इंतहाई अहम और हसास शोबे का चीफ था। और चौकीदार का यह कहना कि डेविड अंथोनी के बड़े बड़े अफसरों से दोस्ती थी भी काबिले गौर फिक्र बात है। साहब दफ्तर तो बंद है, शाम को खुलेगा, आप शाम को तशरीफ़ ले आए। चौकीदार ने कहा। मुझे अभी और इसी वक्त उसका पता चाहिए। ये आखिरी नोट है मेरे पास। सिद्दीकी ने जेब से एक और बड़ा नोट निकालते हुए कहा, लेकिन उसने नोट अपने हाथ में ही रखा। ओहो साहब, ये है तो ये गलत, लेकिन बहरहाल ठीक है, मेरे पास चाबियाँ हैं, लेकिन मैं अनपढ़ हूँ। चौकीदार की नज़रें नोट पर जमी हुई थी। ठीक है, मैं खुद चेक कर लूँगा, सिद्दीकी ने कहा। नोट चौकीदार की तरफ बढ़ा दिया। चौकीदार ने इस तरह नोट झपट लिया जैसे गोश्त का टुकड़ा छीना जाता है। उसके चेहरे पर बेपनाह मुसरत के आसार नमदार हो गए। सुबह से भारी रकम वसूल हो रही थी और बिल्कुल मुफ्त। आइए जनाब, चौकीदार ने कहा। फिर सिद्दीकी को लिए इमारत की एक भी तरफ आ गया और फिर एक दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और एक कमरे का ताला खोलकर अंदर आ गया। ये कमरा वाकई दफ्तर के से अंदाज में सजा हुआ था, लेकिन यहाँ एक की बजाय 3-4 मेज़ें थी। जनाब, ये जाहिदी साहब की मेज़ है। जाहिदी साहब ही तमाम मेंबर का रिकॉर्ड रखते हैं। चौकीदार ने कोने में मौजूद एक मेज़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेज़ के साथ एक रैक जिसमें मोटी मोटी फाइलें तरतीब से रखी हुई थी। सिद्दीकी ने आगे बढ़कर इन फाइलों को चेक करना शुरू कर दिया। फिर एक फाइल पर मेंबरशिप के अल्फाज देखकर उसने वो फाइल निकाली और इसे मेज़ पर रख कर खोल दिया। फाइल में कार्ड लगे हुए थे जिस पर गार्डन क्लब के मेंबरान की क्वाइफ दर्ज थे। थोड़ी सी कोशिश के बाद उसने वो कार्ड निकाल लिया जिस पर डेविड अंथोनी के क्वाइफ दर्ज थे। डेविड अंथोनी के कार्ड में हवाला शख्सियत का नाम डॉक्टर आर्नल्ड बदाई था। डॉक्टर आर्नल्ड जो ऑयल एंड गैस रिसर्च के इदारे के सरबराह थे और मशहूर मारूफ आदमी थे। डेविड अंथोनी का पता 0 कॉलोनी कोठी नंबर 99 दाइश था। साथ ही उसका फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ था। शोबे के लिहाज से इंजीनियर था, लेकिन किसी फर्म का नाम मौजूद न था। जल्दी कीजिए साहब, कहीं कोई आ गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये खुफिया रिकॉर्ड होता है। एक तरफ खड़े चौकीदार ने बेचैनों के से लहजे में कहा और सिद्दीकी ने सारे लाते हुए फाइल बंद करके वापस रख दी। ठीक है, आओ, सिद्दीकी ने कहा और कमरे से बाहर आ गया। फिर चौकीदार तो ताला लगाने में मसरूफ हो गया, जबकि सिद्दीकी तेज तेज कदम उठाता गेट की तरफ बढ़ गया। उसने कार आगे बढ़ाई। फिर थोड़ी देर बाद उसे जैसे एक पब्लिक फ़ोन बूथ नजर आया, उसने कार रोक दी और फ़ोन बूथ में दाखिल होकर उसने जेब से सिक्के निकालकर फ़ोन पे इसमें डाले और रिसीवर उठाकर कार्ड में दाई डेविड अंथोनी के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। चंद्रा में घंटी बजती रही, फिर किसी ने रिसीवर उठा लिया। यस, एक भराई हुई सी आवाज़ सुनाई दी। लहजा इस तरह था जैसे कोई सोते में उठकर फ़ोन अटेंड कर रहा हो, लेकिन लहजा मकामी था। डेविड अंथोनी साहब से मिलना है मुझे, सिद्दीकी ने कहा। डेविड अंथोनी? ओह, अंथोनी साहब तो 3 माह पहले कोठी छोड़कर चले गए। मेरा नाम आमिर रज़ा है। मैंने उनसे कोठी खाली कराई थी। मैं इस कोठी का मालिक हूँ। पहले मैं बैरून मुल्क रहता था, इसलिए मैंने इसे किराए पर दे दिया था। फिर मैं वापस आ गया और अब मैं खुद रह रहा हूँ। अब आप कौन सा आप बोल रहे हैं? आमिर रज़ा शायद कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बतूनी लगता था। मैं सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो से बोल रहा हूँ। डेविड अंथोनी साहब का मौजूद पता हमें चाहिए, वरना आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।
کیونکہ ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق اس کوٹھی میں جرائم کی سازش ہوئی ہے۔ صدیقی نے جان بوجھ کر لہجہ سخت بناتے